Hey you, welcome to Level Up. This is where Calm Chase gets real. From self growth to career moves to making the workplace work for you. We decode what they don't teach in classrooms. And today on the episode, I have a very, very special guest with me, Dheeraj. Dheeraj's personal favorite, and I think vice versa as well for the guest that that Dheeraj is his favorite. The one and only Rupesh. I want to give an introduction for him, but I will let Rupesh take the stage and give his introduction. Rupesh, please introduce yourself. First of all, thank you so much, ma'am, for providing such a wonderful platform for the students like us. So, first of all, my name is Rupesh Shure. I am from Chhatrapati Sambhajinagar from the state of Maharashtra. I was a defense aspirant, but now going to soon be officer. But first, let me tell you that I have completed my graduation in BSc in Physics, Chemistry, and Mathematics last year 2024, and thereafter I appeared in CTS and AFCAT examination. And with the help of Kamchis, there is a personal guidance. I got recommended twice, once for CDS and once for FCAT, and soon going to join academy. सबसे पहले तो Yes. I want to congratulate you, heartiest congratulations on these two recommendations. Thank you so much, ma'am. I had seen your personal growth. I was available. I was there in those sessions, and it was truly an inspiring, maybe say, experience to see Mhm. from where you came and where you are now going. But Yes, ma'am. before I start all of this, I would want to know, like, कामचेज के बारे में कहीं से पता चला होगा, राइट? नहीं पता था Yes, उससे ma'am. पहले. यू वर अ डिफेंस एस्पिरेंट. Yes, हाउ sir. वाज लाइफ बिफोर कामचेज? कैसा था? कहाँ थे? क्या कर रहे थे? Ma'am, I would like to start from when I met Dheeraj sir. When I was in YTA, I cleared my NDA, and at that time, Dheeraj sir used to teach us, guide us for the SSB. So there I met personally Dheeraj sir, and I don't know what Dheeraj sir saw in me, what kind of potential they see, but they believe in me, and because of them I got to know about Kamchis. It was his personal startup, and I regularly wanted to join his platform because I know that he is the man who can guide me in a direct direction and guide me when there is a need. At that time he is the man, he can guide me. So I have that belief, and that belief was worth it, and everything was worth it. So from that onwards I got to know about Kamchis. But when I my India attempts were left, means my India attempts were finished, and now I'm left out with nothing. Now I have to work on for my CDS and FCAT. So at that time, Dirisa started Kamji's platform, and he just showed me that without any of thought, I just join it because I know that अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा मुझे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, मतलब मिलेगी. And I got that. After joining the Kamchis, means before I have started my study and all, but not in the direction because SSB is the main task for me to conquer. Written was simple for me, but for SSB it's very difficult, and my 4 attempts were already completed. So I joined the Kamchis, and after joining the Kamchis, slowly, by taking small steps, there is a sir should tell us that having a particular schedule, following it in a proper way, and that basics sticks to the basics, and a complete timetable following to the schedule. That helped me a lot to be a more productive, improve my communication skill. Even after joining Kamchis, I got a platform where I used to conversation with my colleagues, with my friends in English, because in my such a I live in such a area where no one used to talk in English, and for SSB English is must to express yourself clearly. So Kamchis provided me that platform, which helped me to be more productive, improve my confidence, my communication skill, expression skill, and that helped me a lot to excel in interview. So अरे, that was so happy to hear कि Dheeraj has been a main person in your transformation as well. yes, And I am sure he continues to inspire a lot of people. So yes. कुछ जब ज्वाइन किया धीरज को, या फिर जब रिकमेंडेशन के थोड़ा पास पहुंचे, कुछ डाउट्स Mhm. थे, कुछ चैलेंजेस फेस किए क्या? यस मैम, एज दो आफ्टर ज्वाइनिंग कामचेस मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मेरी पर्सनैलिटी एज ए डिफेंस एस्पिरेंट
डिफेंस फोर्सेस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो तो बन चुके हैं, but the problem I was facing is that still lack of confidence because of practice, because in SSB we have to face group discussion and all, and for that we need a real time practice, ground practice. ऑनलाइन हम कर लेते कुछ भी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो होता है वहां पे जाके पता चलता है. सो फॉर दैट आई एम नॉट श्योर. बाकी साइक एंड पर्सनल इंटरव्यू इट्स नाउ नाउ इट्स गोइंग वेल. बिफोर दैन जब मैंने इंडिया के टाइम दिए थे वो वाले में और इस वाले में बहुत जमीन आसमान का फर्क था. बट फॉर जेडी मुझे एक कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी फॉर द प्रैक्टिस, सो दैट जो कुछ भी मैंने सीखा है वहां पे एग्जीक्यूट कर पाऊँ और अपना बेस्ट दे पाऊँ. एज सच नो दैट मच ऑफ challenges after Kamches I have faced. अरे बहुत बढ़िया. So when you joined that defense aspirant program for Kamches, the SSB program for Kamches, अब कुछ ऐसी चीजें जो particularly बहुत ज्यादा help करी हो for you to grow or for you to be confident in those SSB, interview. Yes, मैम. मैम सर ने ना हमें एक चीज बोली थी करने के लिए, कि लाइफ में अभी तक जितने कुछ आपने कुछ किया है बचपन से लेके अभी तक, जो जो आपने किए गलतियां की है, जो अचीवमेंट है आपकी, सब कुछ जिसको आप हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन कर लो. और फिर उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. और फिर वो चीजें मुझे हेल्प की अपने आप को खुद को इम्प्रूव करने के लिए. और एक चीज की सर ने एक एक्सेल शीट बनाई थी, उसके अंदर अपना पूरा पीआईक्यू फॉर्म था, जो कि एसएसबी के लिए रिक्वायर्ड होता है, कि आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है स्पोर्ट्स के लिए, या फिर आपका डेली शेड्यूल क्या है. तो उससे ना हमें एक हेल्प मिलती थी अपने प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, कि आज दिन भर मैंने कितने कितने टास्क दिए थे खुद को और कितने कंप्लीट कर पाया. तो उससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता था खुद को कि हम खुद को डे बाय डे सेल्फ इम्प्रूव कर रहे करते हैं. तो दैट वाज द मेजर हेल्प आई विल से. Good. Any did you have any kind of, for example, maybe before Kamches तेरी कुछ हैबिट्स रही होंगी कि मैं ये कंटिन्यूअसली फॉलो करता था, होगा ऐसा, है ना? So when Dheeraj entered your life or when Kamches entered your life, ऐसी कोई हैबिट्स which would have changed you for the better, कि मैंने अपने अंदर जब ये चीजें चेंज करी तो मेरे को रिजल्ट दिखा, so anything of that sort. मैम मोबाइल ज्यादा यूज करता था मैं, although I have deleted Instagram, but YouTube was the one who used to distract me a lot. So because of that structure, giving daily task to us and sticking to it, तो उससे बहुत सारा मेरा टाइम से हुआ, और जो कि मैं दूसरे काम के लिए एग्जीक्यूट कर पाया, जो मेरा दूसरा काम था उसके लिए मैं यूज कर पाया वो टाइम. सो दैट टाइम मैनेजमेंट आल्सो हेल्प. So the time management was something that Dheeraj taught you यस. about. Okay. यस मैम. Great, great. So Kamche's journey तो मैंने, I mean, I can vouch for the listeners who are listening to us that I have seen this person grow and that result is right in front of us. But let's यस मैम. talk a little bit about how your journey has been for SSB. क्या ओके. experience रहा? एक नहीं दो SSB में गया, दोनों में recommend हुआ. कोई ऐसे SSB भी थे where you went but were not recommended? और ये जो दो SSB तूने recommendations के साथ बाहर आया, उसमें what was your experience like? तो इट वाज माय 7th एंड 8th अटेम्प्ट इनके अंदर मैं रिकमेंड हुआ. बट बिफोर दैट द सिक्स वर्स लाइक जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, मतलब बहुत कुछ सिखाया, लाइफ लेसन आई विल से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट थे वो इंडिया के थे. एट दैट टाइम आई यूज्ड टू प्रिपेयर विद धीरज सर. But at that time, my main weakness is that my communication skill. I was not able to express myself clearly. Even इतनी कमजोर थी मेरी इंग्लिश कि मैं कभी कभी ही को शी भी बोल देता था, टू बी फ्रैंक. तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड. पता नहीं धीरज सर ने मेरे अंदर क्या देखा, ही बिलीव इन मी, और मैं उनके हिसाब से बस चलता रहा. ही यूज्ड टू से मी ऑलवेज, आई वांट टू सी यू इन यूनिफॉर्म. एंड वो जो उनके वर्ड्स थे, सेंटेंस थे ना, वो मुझे मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, कि भाई करते रहे तू करके, किसी को तेरे तेरे से होप है, तो उनके होप तो उनको कभी लेट डाउन नहीं हो जाना है. तो बस ये सब मोटिवेट करता रहता था. बस 2 इंडिया के स्क्रीन आउट हो गए, उसके बाद 2 टेक्निकल एंट्री थी, उसके अंदर में इन हो गया स्क्रीन में, लेकिन कॉन्फिडेंस आउट हो गया. रीजन बिहाइंड आई थिंक माइट बी साइड टेस्ट मेरा इतना अच्छा नहीं था, या फिर मतलब मैं पर्सनली खुश नहीं था अपने परफॉर्मेंस के, ना कि जीटीओ में खुश था, इंटरव्यू में और ना साइक में. तो मैं कंफर्म था कि कॉन्फिडेंट होने वाला हूँ. और फिर से मेरी टेक्निकल एंट्री थी, उसके अंदर में फिर से स्क्रीन आउट हो गया. और स्क्रीन आउट होने का मेन रीजन था मेरी कम्युनिकेशन स्किल. उसके अंदर से मुझे कॉन्फिडेंस कम था और नर्वसनेस हो जाती थी, और अगर नर्वसनेस हो जाती है परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाता है. तो ये मेन रीजन था स्क्रीन आउट होने का, बार बार रिपीटेटिव. फिर मैंने कामची ज्वाइन किया.
दोन दो आफ्टर 1 ईयर ऑफ माई इंडिया अटेम्प्ट। सो वहां से काम स्टार्ट हुआ, फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे इंप्रूव होने लग गई, मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया। और फिर ग्रेजुएशन एंट्री के बाद अब ये था कि मुझे बहुत प्रेशर आने लग गया था कि अभी ग्रेजुएशन एंट्री मेरे सेशन और खत्म हो चुके हैं, मैं यहाँ पे हार्डकोर रिपीटर बन चुका हूँ, और अभी सब तगड़े तगड़े बन जाएंगे, ग्रेजुएशन एंट्री है। तो मैंने वो डर का माहौल क्रिएट कर लिया था पहले से अंदर, माइंडसेट के अंदर। तो उसके अंदर मैं परफॉर्म कर ही नहीं पाया जब मैं एंट्री के लिए गया था, टेक्निकल एंट्री के लिए, अपने एफ कैट एंट्री के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने थोड़ी सी धीरे सर को बताया कि ऐसे से हो गया करके। धीरे सर बोल के कोई ना, एनालाइज कर खुद को, क्या आया क्या नहीं, कहाँ गलती हुई क्या नहीं। मैंने की सर से बात वगैरह की, और फिर मैं गया एसएसबी के लिए, सीडीएस के लिए, और फिर मैं स्क्रीन हो गया वहां पे, स्क्रीन हो गया। लेकिन कॉन्फ्रेंस में मुझे पता लग गया कि मुझे अल्दो जो क्वालिटी उनको रिक्वायर्ड है वो आप मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। बस मुझे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए जाके अंदर मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ, अपने आप को और एक्सेल कर सकूँ, थोड़ी सी और नॉलेज ले लूँ, ताकि मैं और बेस्ट कर पाऊँ। तो काम चीज करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब आई हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि मैं इजीली सिलेक्ट हो जाऊंगा के। बिफोर दैट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, आई यूज्ड टू फियर ऑफ एसएसबी। अभी एसएसबी करके क्या करूँ, और नर्वसनेस आ जाती थी, प्रेशर आ जाता था ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी वो प्रेशर नर्वस सब कुछ खत्म हो चुकी थी। बस अब ये था, स्क्रीन होना है, परफॉर्म करना है अपना। सर ने एक बात बोली थी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एंजॉय द जर्नी। सर ने जर्नी एंजॉय करने के लिए सिखाया है। तो मैं भी वहां पे जाके टास्क को एज अ बर्डन लेता था, एज उसको एंजॉय करने के लिए एक प्रोसेस देता था कि बस अभी कोई टास्क मिला हमें, इसे बस एंजॉय करना है। बस मैं वही करता था और टास्क इसलिए हो जाता था। तो बस वही हुआ। और फिर although आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट, बट स्टिल आई एनालाइज व्हाट आई हैव मेड डन, कहाँ गलतियां हुई, और उसको एनालाइज किया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली कोचिंग की हेल्प लेके। और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के 7th और 8th अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया। और द रिजल्ट वाज दैट कि फर्स्ट टाइम मैंने जब इंटरव्यू दिया, मेरे फर्स्ट टाइम मुंह से मतलब मेरे फेस के ऊपर खुशी थी। लेकिन जब भी जो भी मैंने इंटरव्यू दी पिछले 2-3, उसके अंदर मेरा बस मुंह लटका हुआ आता था जब मैं बाहर निकला था रूम में से। लेकिन इस बार एक स्माइल थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इस बार फेयर चांसेस है कि मैं रिकमेंड हो जाऊँ करके। एंड फाइनली हो गया। तो एंड वो सेम अप्रोच फॉर एट। स्माइल का रीजन क्या था? कहाँ से आई वो स्माइल? बिकॉज जो हॉनेस्ट थी मैम, जो मेरे आंसर्स थे पूरे हॉनेस्टी के साथ थे। बिकॉज पहले मैं क्या करता था कि एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए उसका, ऑल्दो जो मैंने लाइफ में चीज की है नहीं, उसको हाइड करना, दूसरी चीज बना के फेक करके बताना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन इस बार उन्होंने एक मुझे क्वेश्चन पूछा था कि डू यू अटेंड कॉलेज रेगुलरली करके। मेरे ग्रेजुएशन परसेंटेज है 63। ऑल्दो मैं कॉलेज अटेंड नहीं करता हूँ रेगुलर, बट मैंने इस बार बोल दिया कि सर मैं कॉलेज नहीं करता हूँ अटेंड रेगुलर। अब जो हॉनेस्टी थी, उनको पता नहीं क्या पसंद आया क्या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि जो मैंने बोला है, मैंने अपने कप को रिप्रेजेंट किया है, ना कि किसी और को किया है। और इसलिए जो जितने उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सबके सब आंसर कर दिए थे एकदम क्लियरली। तो एक पता नहीं एक स्माइल आ गई थी ऑटोमेटिकली कि इस बार तो बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। और क्या डिफरेंस, आई मीन व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू सॉ मे बी इन योरसेल्फ एंड जो तेरे साथ में आसपास के लोग थे? कोई ऐसे एनालाइज किया होगा व्हेन यू वर एनालाइजिंग योरसेल्फ? तो व्हेन जब हम्म। तू 6-7 में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, उस टाइम पे भी हाँ तूने हाँ। कुछ एनालाइज किया होगा कि देयर वर सम पीपल बेटर देन यू, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, एंड यू लैक्ड समवेयर, एंड देन यू ट्राई टू चेंज दैट। सो व्हाट वर दोस पर्टिकुलर थिंग्स जो तेको किसी और में लगता था कि दे डिड बेटर बट नॉट मी? फालतू में हम बहुत अच्छे अच्छे लोग बंदे मिले मुझे इस के अंदर, एंड दे आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स नाउ एज वेल। तो उनके अंदर क्वालिटीज थी, एक कॉन्फिडेंस झलकता था उनके अंदर, एक उनकी पर्सनैलिटी दिख जाती थी ऑफिसर लाइक। पता नहीं कहाँ से दिखती थी, लेकिन वो दिख जाती थी भाई ये बंदा ऑफिसर बनने के लायक है, विदाउट परफॉर्मिंग एनीथिंग। तो एक आउटर ड्रेसिंग भी होनी चाहिए अपने हिसाब से, कि एक आउटर पर्सनैलिटी लुक देख के पता लगना चाहिए कि भाई एक ऑफिसर बंदा है करके। अंदर भले उसके बाद में पता लग जाएगा, लेकिन स्टिल एक देखने से चीज पता लगनी चाहिए वो वाली। तो एक बात थी कि ड्रेसिंग सेंस, अपना अटायर खुद को कैसा रखना, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखना, कि कौन सी चीज कहाँ पे रखना है, कौन सी चीज कहाँ पे रखना है, पर्टिकुलर एकदम अरेंज वे में दे। और मैं क्या करता था कि मतलब मैं एक ऑर्गेनाइज इतना नहीं था, जो आया वहां पे रखा छोड़ दिया, अगले दिन फिर उठा, पता नहीं कहाँ चला गया, हो गया टाइम वेस्ट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल वो भी नहीं थी मेरे अंदर, तो वो भी मैंने धीरे धीरे इंप्रूव की है। और बाकी बंदों से सीखना मतलब जो हेल्पफुल नेचर होना, सपोर्टिव होना, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब चीजें सीख ली मैंने उन बंदों से। मैटर किया?
और अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में तूने मुझे बहुत बताया कि देखो पर्सनालिटी, हम्म। यू यूज टू सी अ पर्सनालिटी इन सम पर्सन, मतलब कैन यू डिफाइन दिस पर्सनालिटी? क्या चाहिए पर्सनालिटी? जब देखता था तो क्या लगता था, या उनके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट लगता था कि कि ये बंदा बन जाएगा ऑफिसर? पता नहीं मैम, उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस झलकता था, एक डिफरेंट टाइप का। हम्म। मतलब अगर कुछ 10 बंदों का ग्रुप है, हम्म। तो एक बंदा ऐसा दिखेगा कि उसका प्रॉपरली हेयर कट है। मतलब एक ड्रेसिंग से एक आउटर पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, एक अंदर वाली भी होनी चाहिए। बट फॉर डिफेंस प्रोसेस बोथ आर रिक्वायर्ड। तो ऐसा तो मैम कुछ नहीं था, बट ये एक चीज थी जो मुझे दिखाई दी थी। सो देन यू वुड हैव थॉट कि आई व्हेन आई कम नेक्स्ट तो मैं भी ऐसे ही बन के आऊंगा, ऐसा हाँ, टाइप राइट। कुछ? सो देन राइट। डिड यू कॉपी दैट एंड डिड यू गो टू नो, द नो, इट्स नॉट एसएसबी लाइक लाइक कॉपी दैट? दैट। नहीं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, अपना आई जस्ट, पर्सनालिटी लेके गया ना? यस मैम। हाँ, ये यही बिकॉज यही एवरीवन हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैम। नो एवरीवन, समझ। नॉट एवरीवन हैज सिमिलर पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो वो जो पर्सनालिटी तूने अपने आप में डेवलप करी, अब हम्म। उसके लिए मतलब माय लाइक व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज, सी यू टॉक्ड अबाउट, यू टोल्ड मी कि तूने क्या क्या देखा, वेयर यू वर, हाउ यू रीच्ड हियर, हम्म। वो सब बात एब्सोल्युटली राइट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट वो ओके मैम। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए तेको ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, ऑन अ डे टू डे लेवल क्या क्या चेंज करना पड़ा? और क्या तुम, बिकॉज यू हैड कॉलेज, तेरे एग्जाम्स थे, यू हैड फैमिली टू लुक आफ्टर, तो अब यस 100 मैम। चीजें दिन में आसपास घूमती है, राइट? कामचेज के सेशंस होते थे जहां तुम्हारा टाइम जाता था, बट ऑन अ डेली लेवल आप क्या करते थे विच लेड यू टू दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी? मैम, हैविंग अ परफेक्ट टाइम टेबल, नॉट परफेक्ट but structurized timetable, which is helpful for you, which is according to you। जो कुछ आपको इंटरेस्ट है, आपको काम है, उसके हिसाब से आपने सब कोई अपना टाइम टेबल सेट कर लिया। पूरे 24 आवर्स डिवाइड कर ले, सबके लिए पर्टिकुलर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और उसको बस ठीक रहना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए। और एफर्ट जब डालोगे तो ऑनेस्टी के साथ डालना है बस। तो वो वाला भी मैंने फॉलो किया था। सुबह से 5:30 से मेरा डे स्टार्ट होगा, और रात में 11:30 12 तक खत्म हो जाएगा। तभी उसके मतलब अंदर क्या था? इंस्ट्रक्शन आपको कोई। वॉक मी थ्रू अ डे ऑफ योर लाइफ, एक ऐसे कि 5:30 से शुरू कर, कि 5:30 यू वेक अप, 5:30 फ्रेशन अप, ओके, क्या? ओके। वॉक मी थ्रू द डे ऑफ लाइफ। So when I used to prepare for the exams and SSB hour, so I used to wake up at 5:30 a.m. Then with one of my friend, I used to go for ground running, some exercises, and I'm also a boxer, so I used to do shadow practice as well. So, but before 7, I used to come, get ready, and 8 से 12 तक मेरा मॉर्निंग शेड्यूल रहता था। 8 से 11 11:30 तक उसके अंदर मैं अपनी प्रिपरेशन करता था एग्जाम की, सीडीएस की हो या फिर एफकेट की हो। देन बीच में ब्रेक लिया 11:30 से 1 बजे तक का। उसके अंदर लंच हो गया। एक जो मेरी हॉबीज थी, पॉडकास्ट लिसन करना वगैरह, वो सब कुछ कर लिया उसके साथ ही। देन अब उसके अंदर मैंने हॉबीज भी ऐड कर लिखी थी, क्योंकि इसी में हॉबीज भी आनी है, तो हॉबीज भी फॉलो करनी है। धीरे सर ने बताया रखा था कि ऑलरेडी ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए करके। तो फिर बाद से फिर से 2 से मेरा 5 एक इवनिंग सेशन चलता था, 2 से 5 आफ्टरनून वाला सेशन। उसके अंदर फिर से जो एसएसबी की हो, एसएसबी हो, या फिर कोई और एग्जाम हो जिसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके लिए प्रिपेयर करना। और फिर एक इवनिंग सेशन रहता था, उसके अंदर मैं बीच में ब्रेक लेता था, जिसके अंदर दोस्तों के साथ घूमना, कहीं बाहर गए, चले गए, फैमिली के साथ कुछ काम हो वो सब कुछ कर लिया। और फिर शाम में फिर से बैठूंगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उसके अंदर अब बस एसएसबी का होगा, और मेरे पर्सनल पर्सनल भी फोकस होगा, जिसके अंदर मैं अपना नॉलेज इंप्रूव करूंगा करंट अफेयर्स का। अगर मेरी कम्युनिकेशन वीक है तो मैं लेक्चर एड करूंगा। या फिर काम जिसका सेशन रहता था लास्ट में, एंड में, मतलब एंड ऑफ द डे में, रात में रहता था लगभग 8 9 बजे के बाद। तो तब मैं जो कामचेस का सिलेबस था या फिर जो कुछ होमवर्क दिया सर ने, उसको एनालाइज करके रख देता था। और फिर डिनर होने के बाद सर को ज्वाइन कर लिया कामचेस, वहाँ जाके परफॉर्म किया। जो चीजें सीखने मिली वो सीख ली, कुछ जो चीज नोट डाउन करनी थी नोट डाउन कर ली, और उसके अगले दिन फिर एग्जीक्यूट किया अपनी शेड्यूल में ऐड करके। और फिर रात में थोड़ा सा अपना फिर से प्लान बना के कल क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर से बना के सो गए। दैट तो सिंपल। मतलब देयर वाज नो, लाइक तूने इतना कोई, नो स्ट्रिक्ट डेडलाइन ऑफ जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी, नो स्ट्रिक्ट डेडलाइन ऑफ डेडलाइन ये पर्सनालिटी डेवलप करना करना है? इट वाज नो ऑलवेज मैम।
full of hobbies, full of playing, full of family time, dinner time, lunch time, सब. तो वो No, प्रेशर नहीं, मतलब like you work with a free mind. yes ma'am, it's not like a pressure Hmm. because personality is this thing जो कि धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहती है. अभी भी आई हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, लेकिन अभी भी और बहुत कुछ चीजें जो मुझे इम्प्रूव करनी है, तो ये चीजें की इम्प्रूव होती जानी है. तो इसका प्रेशर लिए कुछ नहीं होना, बस अपने हाथ में कि जो अपने हाथ में वो करो, उसे धीरे धीरे इम्प्रूव करो. और मैं उसे एंजॉय करता था, ऐसे नहीं बर्डन लिया करके. उसे एंजॉय करना सीखो, एक बार प्रोसेस पे ट्रस्ट कर लिया फिर उसको एंजॉय करना सीख लो, बाकी कुछ नहीं. अब तुम्हें ये वाली लाइन कंटिन्यू करिए. आई वॉन्ट यू टू रिकमेंड पीपल, जो लिसनर्स देखो आज सुन रहे हैं, राइट, दिस इज हम्म. योर मोमेंट, दिस इज योर चांस. Take that in and maybe, you know, be there for those people who want to get to the shoes that you are in currently. So what are the recommendations, what are the learnings that you will tell them कि भाई देखो ऐसा मत करो, ऐसा करो. This will help you in the longer run. Something of that sort. Do you have any learnings for the people who are listening? यस मैम, आई हैव सीन द स्टूडेंट्स जो कि पर्टिकुलरली कॉलेज में पढ़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, तो उनका शेड्यूल तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है. जब मन आए जब कॉलेज जाओ, जब मन आए जब कॉलेज जाओ, मत जाओ, खाओ पियो सो मौज करो. अल्दो उनका एज है करने के, लाइफ एंजॉय कर सकते हो आप, लेकिन उस लाइफ को भी एक पर्पज होना चाहिए. जो अपने पर्पज सेट किया है, कि वो आपके पेरेंट्स ने आपके पास जो होप्स रखे कि अवर सन विल डू समथिंग, जो अपने हार्ड एंड मनी उनके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, कि उनका कुछ ना कुछ वर्थ निकलेगा अपने लड़का या फिर लड़की जो भी हो. तो लाइफ में जो पर्पज है उसे डिफाइन करो, उसको क्लियर रखो, और पर्पज के लिए लाइफ में सब चीजें करो, लेकिन जिस पर्पज के लिए करने वो पर्पज क्लियर रखो. और उसके लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल होना मस्ट है. लाइफ में कुछ भी कर रहे हो उसको प्रॉपर शेड्यूल होना ही चाहिए. तो तूने इतना टाइम टेबल पे रेफरेंस डाल दिया that मेरा मन कर गया कि आज ही रात को आई प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड स्विच विद द टाइम टेबल नो टुमारो. मैम, यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द रिजल्ट. I'm sure. Because yeah, to the time आप काम करो, you have certain time limit set for everything, it works out. So that's I think a very very good idea for listeners also, that you know they develop a timetable, follow करने की कोशिश करो. I think I don't know, Dheeraj also always used to say this, and maybe इस चीज पे बहुत मानती हूँ, that it takes only 21 days to build a habit. यस मैम, यस है राइट. ना? And एंड 21 यस days मैम, में तो एंड वन मोर थिंग, इट्स नॉट लाइक कि सुबह से लेके शाम तक सब कुछ वही करते रहो. जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगे वो करो, और एट द एंड ऑफ वीकेंड पे उसे फ्री रखो बिल्कुल. वीकेंड पे पूर्ण, वीकेंड पे इतना कर दो कि मेरे ज्यादा कोई एंजॉय नहीं कर सकता, और बाकी के 6 दिन ऐसे लगाओ कि मेरे ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता. वाह. हाँ, बस. truly, truly. Yeah, I think you resonated with this, and you brought out results for yourself, which is what we are seeing today. That is, I think, some very good suggestions that we have. And 21 days to make a habit, 21 days to change your life is यस मैम. what we always agree on. So, आगे चलो, I mean, we've heard about your journey, really inspiring, and I hope listeners are inspired with this. But last question to you, what's next? क्या किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, कि वो बस जर्नी, वो एंट्री टू आईएमए, या फिर what's the most exciting thing? Also, to listeners, we would like to tell that Rupesh is joining the Indian Military Academy in Dehradun. So he'll soon be commissioned in another year, and we'll see him in the uniform. Dheeraj's entire dream of seeing you in uniform is completed now. So यस what's मैम. the exciting thing that you're waiting for? मैम, एक्साइटमेंट इज दैट कि ज्वाइनिंग टू द एकेडमी, वो भी ड्रीम एकेडमी जिसके लिए सपने देख रखे थे. तो एक्साइटमेंट तो वही है. और और एक चीज जो आपने बोली, धीरज सर ने जो बोला था, आई वांट टू सी इन यूनिफॉर्म. सो आई होप आई हैव कंप्लीटेड नाउ दिस ड्रीम. I am तो pretty sure एक्साइटमेंट तो बहुत Dheeraj है. is going to be the most happiest person when he sees यस you मैम. in that uniform. I can vouch for it. मुझे पता है धीरज का वो entire the josh that he has in himself. यस मैम, यस. बिकॉज मैम क्या होता है ना, लाइफ में देर आर वेरी फ्यू पर्सन आफ्टर योर पेरेंट्स दोज रियली वांटेड टू सी यू सक्सेसफुल, एंड धीरज सर इज वन ऑफ देम. Yes, absolutely. यस So मैम. exciting thing there is the uniform as of now, I see. यस मैम. Preparation already कर चुका है कि करनी है अभी?
नहीं करनी मैम, अभी ज्वाइनिंग स्टेशन आने बाकी है, करूंगा हाँ, स्टार्ट आराम से, अभी टाइम है। चलो ठीक है, and I will end this recording now. So that's it for today on Level Up. Hope we helped you. Stay tuned, stay curious, and we'll catch you next time with more fun from Country.